کائنات کا بدترین رافضی کتا نلہ یاری کو صوفی کلیم حنفی نے سر پر قرآن شریف رکھ کر کھلا چیلنج کر دیا ہے، اور چیلنج بھی ایسا کیا ہے کہ رافضی شیعہ کتا نلہ یاری معلوم نہیں کون سی گفا میں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا ہے، اور اس نلہ یاری کے جتنے بھی پالتو کتے ہیں جو اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، جیسے کہ نارالعین ہے اور پنچر والے بابا ہیں، ان تمام رافضی کتوں کو صوفی کلیم حنفی نے کل رات لائیو اسٹریم میں ایسا سبق سکھایا ہے کہ ان کے پچھواڑے سے خون نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ رافضی کتا نلہ یاری جس نے مسجد اقصی کے بارے میں یوں کہا کہ مسجد اقصی تقدس والی یعنی مقدس جگہ نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ مسجد اقصی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اسی مسجد اقصی کے بارے میں یہ نلہ یاری رافضی کتا ایسے بول رہا ہے کہ وہ مقدس جگہ نہیں ہے، اس سے شیعوں کا مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ صوفی کلیم حنفی صاحب نے قیامت تک کے لیے اس کو چیلنج کر دیا ہے کہ مرتے دم تک اگر تجھ میں دم ہے تو بغیر کسی شرط کے لائیو اسٹریم میں اپنے چینل پر مجھ کو بلا لے، ڈیبیٹ کر لے، مناظرہ کر لے۔ جس دن تو نے کلیم حنفی سے مناظرہ کر لیا وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اس دن تجھے پتہ چل جائے گا کہ حلالی کون ہوتا ہے اور حرامی کون ہوتا ہے۔ چلیے صوفی کلیم حنفی کا چیلنج والا وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے رات کل لائیو اسٹریم میں آ کر نلہ یاری کو کھلا چیلنج کیا تھا۔ مجھے تو اللہ یاری سے مناظرہ کرنا ہے، اور یہ اللہ کی مقدس کتاب میرے ہاتھ میں ہے، قرآن کریم۔ میں اس کو سر پہ رکھ کر کہتا ہوں، خدائے وحدہ لا شریک کے مقدس کلام کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، حسن اللہ یاری سے مجھے مناظرہ کرنا ہے، ایمان شیخین پر کرنا ہے۔ جتنے اختلافی مسائل ہیں ایمان شیخین کے بعد ان سب پر مناظرہ کرنا ہے، بے شک کرنا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے کلمے کی موت نصیب نہ فرمائے، مجھے کرنا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بیچ میں کوئی رابطہ، کوئی وسیلہ، کوئی بھی رابطہ، کوئی بھی وسیلہ اب ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ سب رافضی ہے۔ حسن اللہ یاری خود آ کر کہے کہ ایمان شیخین پر کلیم حنفی سے میں مناظرے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ نامزد کافر وہ ثابت کریں گا، نامزد جنتی میں ثابت کروں گا، نامزد جنتی میں ثابت کروں گا۔ میری شرطوں کو لے کر بہت اچھل رہے تھے نا۔ یہ بابا تو بیچارہ پڑھا لکھا آدمی ہے نہیں، پنچر کی دکان چل نہیں رہی تھی، دینی لائن کے اندر آ گئے۔ حسن اللہ یاری نے پھدو بنا دیا کہ دیکھو بابا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اشارے سے دلیل دوں گا اور مجھ کو بالکل کڑی دلیل دینا ہے۔ بابا اشارہ مطلب کیسا اشارہ؟ ارے پگلے، اشارہ مطلب ایسا ہاتھ سے اشارہ، آنکھ سے اشارہ نہیں۔ تجھے اس نے الو بنایا، تجھے لالی پاپ دیا، سمجھا، اور تو نے لے کے چوسنا بھی شروع کیا۔ ذرا پڑھتا تو دلندر کیا کہہ رہا ہوں میں۔ شرط نمبر 4 کے اندر دیکھیے میں نے کیا لکھا۔ شرط نمبر 2 میں میں نے لکھا کہ فریق مخالف چونکہ معاذ اللہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر کا کفر ثابت کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آیات قطعیات الدلالات، یہ قطعیاتی دلالات بھی ہے اور ایسے بھی پڑھتے ہیں، بعد میں یہ مت پکڑنا کہ وہاں پر پیش پڑھ دیا۔ احادیث متواترہ اور اجماع امت کے سوا کوئی دلیل درمیان میں نہ لائے اور شیخین کا نامزد کفر ثابت کرے، بصورت دیگر وہ ایک بیجا گفتگو اور تطویل لا طائل ہوں گی۔ بھئی تیرا دعویٰ کیا ہے؟ کائنات کے بہترین لوگ کافر ہیں، اور دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے دین کو بدلا، پھر حضور پوچھیں گے یہ کون ہے؟ فرشتے عرض کریں گے حضور یہ وہ بدعتی ہیں، آپ کے صحابی ہیں جنہوں نے دین کو بدلا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو معلوم پڑا کہ انہوں نے خلافت قائم کر کے بدعت کی، معلوم پڑا یعنی یہاں کی بجری، یہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا، کچھ تک بیٹھ رہی ہے۔ تو اس میں حضرت علی بھی تو ہو سکتے ہیں، حضرت علی بھی تو اس میں ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے دارالخلافہ مدینۃ الرسول کو چھوڑ کر، نبی کے مسکن کو چھوڑ کر کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ ہاں معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ کہہ رہا ہوں میں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کوئی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی
जहन्नम की भनक तक नहीं देखेगा इंशाअल्लाह। सब के सब जन्नती और मौलाए कायनात का मकाम और मर्तबा तो हमारे फहम से मावरा है। ये कमबख्त क्या जानेंगे जिनको मौलाए कायनात का नाम लेने का ढंग भी नहीं है, या अली की लॉकेट पहनकर घूमते। तो देखिए मैंने ये शर्त लगाई, फिर मैंने क्या कहा, भाई तू काफिर कह रहा, अबू बकर और उमर काफिर है और दलीलें ऐसी टुच्ची दे रहा है, तो तेरे नज़दीक बिदअत क्या है? जो काम नबी ने नहीं किया या करने का हुक्म नहीं दिया, उसके बाद जो भी सहाबा का काम है सब बिदअत है तेरे नज़दीक। बराबर, सहाबा का हर काम बिदअत है। अबे गधे, अहले सुन्नत के यहाँ नबी और सहाबा का अमल, हुजूर के तशरीफ़ ले जाने के बाद जो कुरान की तदवीन हुई, या मसाजिद पे मीनारे लगे, या अजान का इजाफा हुआ जुमा में, या औरतों को मना कर दिया गया, या तरावी 20 रकात कर दी गई, या तीन तलाक को एक नशिस्त की तलाक़ मुग़ल्लज़ा करार दिया, ये सब सुन्नत है हमारे यहाँ। तो तुझे सुन्नत और बिदअत की तारीफ़ हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, मुनाफिक की तारीफ़, मुसलमान की तारीफ़, मोमिन की तारीफ़ सब हमारी किताब से दिखानी पड़ेगी, और तुझे नामज़द काफिर साबित करना पड़ेगा। और मैंने अपने लिए आसान शर्त रखी। अरे अनपढ़ो, आओ देखो, मैंने शर्त नंबर 4 में क्या लिखा, हम सुन्नी बरेलवी हजरात के लिए अदिल्ला कुरान मजीद। क्या कह रहा? इशारे से दलील दूंगा। और मैंने क्या लिखा? अदिल्ला कुरान मजीद, पहले कुरान लिखा मैंने। तो मुतवातिरात के दर्जे में दर्जे अव्वल पे कुरान नहीं है तुम्हारे नज़दीक? अरे पढ़ते ही हो या क्या करते हो पागलों? मैंने पहले कुरान लिखा, अहादीस हसना सहीहा साबिता दलालाते अरबा, जो अहलुस सुन्ना जहां से मसाइल लेते हैं, कुरान करीम, इजमाए उम्मत, कयास फुकहा, अहादीस रसूल, सुन्नत, ये वो 4 मकामात है जहां से हम दीन समझते हैं, दीन लेते हैं, दीन पर अमल करते हैं। वो तो मैंने लिखा, अंडर ब्रैकेट मैंने लिखा, इबारतुन्नस, इशारतुन्नस, दलालतुन्नस, इक्तिदाउन्नस। तो तुमने बाबा को कुछ अलग ही समझा दिया। बाबा भी बेचारा भुने हुए चने की तरह तवे पे उड़ने लगा, अरे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, इशारा इशारा इशारा। अरे चुप रे, जाके पंचर बना, तलिंदर कहीं का। समझ में आता तुझे? कुछ पढ़ने आता? अरे तू ये शर्त ही पढ़ दे, मैं मान जाऊंगा। एक दिन पढ़ते पढ़ते कैसी गाड़ी अटकी थी, फिर छोड़ दिया, पढ़ नहीं पाया। फिर बहरहाल तो मैंने भी अपने लिए वही लिखा। चलिए, ये 16 आदत शर्तें जो मैंने लगाई थी, मैंने अल्लाह की किताब सर पे बात को मुअक्कद करने के लिए, और मैं किताबुल्लाह को सर पे रख कर कह रहा हूँ कि मैं हसन अल्लाह यारी से ईमान शेखैन पर एक ही बात पर मुनाजरा करूँगा, और ये सारी 16 शर्तें मैं मनसूख करता हूँ। बस वो मुनाजरे में पहले कोई वास्ता, कोई राब्ता नहीं, सीधा आए वीडियो में, डायरेक्ट मेरे नाम पर वीडियो। अहमियत देनी पड़ेगी, मुनाजरा करना है तो आकर कहे मैं कलीम हनफी रजवी से ईमान शेखैन पर मुनाजरे के लिए फला दिन उनकी लिंक पर, और सहूलत अगर तुझे मेरी लिंक पर नहीं आना है तो मैं तेरी लिंक पर आता हूं। 16 शर्तें भी ये जो शर्तें रखी थी हमने साबिका, वो 16 शर्तें खत्म कर दी एक नई बात के साथ। तू तेरी लिंक दे, मैं तेरी लिंक पर आता हूं। बस बात ये, जैसे ही मैं आऊं तू अबू बकर उमर को नाम के साथ काफिर साबित कर, मैं नाम के साथ जन्नती साबित करूंगा। अगर तू साबित नहीं कर सका और मैं भी साबित ना कर सका तो मेरी हार का ऐलान करना। हमारे यहां जो हमारा मुस्तदल है वहां से मैं साबित करूंगा नाम के साथ जन्नती होना। जिसका नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो जाहिर सी बात है जन्नती साहिब ईमान होता, वो काफिर कैसे हो सकता है? जब नाम के साथ जन्नती होना साबित हो जाए तो मसला ही खत्म। तू एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा, तू हारता है, तू जलील होता है, तू खार होता है, तू इतना बड़ा मक्कार है कि जो मुनाजरे में तेरी सुबकी होती है, जिल्लत होती, उसको तू सिरे से अपलोड ही नहीं करता। वो तो हमको और जगहों पर देखने का मौका मिला, क्या ही तूने, तेरी जलालत हुई है। खैर, अब अल्लाह यारी जब वीडियो बनाएगा कि मैं कलीम हनफी के साथ उनकी लिंक पर या अपने लिंक पर इस शर्त के साथ कि मैं ईमान शेखैन नाम, एक कुफर शेखैन नामजद साबित करूंगा और वो नामजद जन्नती साबित करें, तो मुझे बता देना, मैं बिल्कुल फ्री हूं। मैं दिन की कैद नहीं लगा रहा, मैं वक्त की कैद नहीं लगा रहा, मैं लिंक की कैद नहीं लगा रहा। और ये जो 16 पुरानी शर्तें थी ये खत्म हो गई। मैं डायरेक्ट तुझसे खिताब कर रहा हूं और मुझे कोई वास्ता, कोई राब्ता बीच में नहीं चाहिए
کہ बाबा बैठेगा टाइमिंग फिक्स करेगा, इस मनहूस को तो मैं देखना ही पसंद नहीं करता। अब इसके बाद अच्छे से सुन लें, इसके बाद अल्लाह यारी के अलावा ये अल्लाह यारी खुद भी इन खबसा को लेकर, इन लोगों को लेकर बैठकर मीटिंगें करता है, बातचीत करता है, तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा जब तक मुनाजरे की बात ना हो। ठीक है, क्या मेरे बारे में राय रखते हैं? ये कुछ यूट्यूबर्स हैं इसके अंदर जिनकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, तो बेचारों को खा कमा लेने दो। मैं ज्यादा मुंह नहीं लगाता हूं, वरना नाम ले लूंगा तो खा मुखा फेमस हो जाएंगे। इस टुच्चे बाबा के जाके कमेंट ही पढ़ लो, 90% लोग हमारी हिमायत में कमेंट पढ़ते। इतना बड़ा जलील के डिलीट भी नहीं करता, कम से कम डिलीट करूं। और इतना बड़ा पाजामा आदमी है कि सूफी बनता है और लोगों को बाकायदा कमेंट में गालियां देता माँ बहन की। अल्लाह ऐसे फितने से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। ये बहुत बड़ा दज्जाल आदमी है, कद्दाब है, झूठा है, जादूगर है, सिफली इल्म करता है, बिदआती है, मुशरिक है। अल्लाह ताला इसे शिरकिया काम करने वाले बिदआतियों से उम्मत की हिफाजत फरमाए और हमें कुरान और सुन्नत की सही समझ अता फरमाए और मनहज रसूल पे, मनहज सहाबा पे, मनहज अहलुल बैत पर, मनहज औलिया अल्लाह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज की इस नशिस्त का खुलासा ये निकला कि अब तक जो बातें हो रही थी, बिगड़ रही थी, उलझती जा रही थी, बातें उलझाओ मत, वीडियो पे वीडियो बनाओ मत, लिंक पे लिंक डालो मत, पोस्टरबाजी, तस्वीरें बिगाड़ना। हमारी तरफ से मैं भी नहीं कहता कि हसन अल्लाह यारी ने मुनाजरा नहीं किया तो हारा कैसे। मैंने कब कहा वो हारा? मैं किसी के साथ लाइव में आया? आज मैं पहली बार अपने शक्ल के साथ में, सूरत के साथ में पहली बार लाइव आया हूं। तो मैं भी इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा हूं ना। तुमसे रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाले थे, आपका काम था उसे सुनना, उसका रिस्पॉन्स करना, जवाब देना, बात करना। तो बिला शक्को शुबा बात पुख्ता होती, अच्छी होती, कल मुनाजरा हो जाता। लेकिन अभी भी तुम रात में कहो कि कल कलीम हनफी से मैं डिबेट करूंगा, मुझे लिंक दी जाए, इंशाअल्लाह आप तक लिंक पहुंच जाएगी। आप मुझसे मुनाजरा करें, मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं मौजूद हूं। तारीख 13 आपने दी थी, तारीख आगे पीछे हो सकती है। अब मैंने कहा मैं 11 बजे लाइव आऊंगा, 1 मिनट आगे हो गया तो कोई शरई जुर्म कर लिया मैंने, कुरान और सुन्नत के रूह से मुझ पे कोई सख्त हुक्म लगा, तो वो मामलात होते रहते हैं। तो अब अगर जब तुम कहोगे कि मैं बग़ैर किसी वास्ते, बग़ैर किसी इसके डायरेक्ट कलीम हनफी और हम मुनाजरा करेंगे ईमान शेखैन पर, नामज़द तकफीर साबित करो, नामज़द जन्नती साबित करूंगा। और बाकी ये जो हैं, अब ये बहुत उछलेंगे, जो इनको इतना कहा गया ना, वो कान का मैल साफ करने वाला हैदराबाद का टुच्चा, जिसके माने यकीनन खता की है तब जाके इतना बड़ा राफजी पैदा हुआ है। आरिफ साहब उससे कह रहे हैं कि तुम शियों की दलील से मुतमईन हो? हज़रत अबू बकर और उमर के बारे में कह रहा, हाँ हसन अल्लाह यारी जो दिखाता हमारी किताब में मौजूद है। तो बोले तुम बन क्यों नहीं जाते हो? बोले उस माना में तो मैं शिया, उस माना में नहीं, तू इसी माना में शिया है कि तुम सब के दिल सिया हो चुके हैं, नजासत आलूदा हो चुके हैं शेखैन करीमैन के ताल्लुक़ से। हज़रात गिरामी, खुदारा इन लगीनों को पहचानो। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, मैं कहीं नहीं गया, मैं बिल्कुल नहीं भागा, मैंने मुनाजरे से आंख नहीं चुराई। लेकिन जब मुझे कोई कायदे का रिस्पांस नहीं हो रहा है, मेरी ज़ात पर तबसरा हो रहा है, मेरे इल्म पे तबसरा हो रहा है और दुनिया भर की बातें हो रही है कुर्बानी को लेकर, खानका को लेकर, कि इनको देखो मुनाजरे का चैलेंज देकर शोहरत हासिल कर रहे हैं और खानका का चंदा जमा कर रहे हैं। 2 साल से खानका का ऐलान हो रहा है, 4 साल से तंजीम के लिए अपील की जाती है और सुन्नी अहबाब देते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खानका का काम रफ्ता रफ्ता करीब बमंजिल है और इंशाअल्लाह खानका बनेगी और अल्लाह और रसूल का अजीम पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचेगा। दौरान गुफ्तगू कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, या कोई वाक़या नकल करने में, या किसी अल्लाह के महबूब बंदे के शान में मुझसे कोई गुस्ताखी गलती हुई हो, मैं अल्लाह ताला के हुजूर मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। आप सब हजरात मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। फ़कीर मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी, क़स्र अबू हनीफ़ा, कुरला वेस्ट।